Welcome students to this consequently fifth interactive session in chapter sexual reproduction in flowering plant. As usual जैसे कि हम हमारे हर लेक्चर की शुरुआत एक पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं, आज भी शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ। पॉजिटिव थॉट है, इफ यू ट्राई देयर इज हार्डली अ पॉसिबिलिटी ऑफ फेलियर। If you try, there is hardly a possibility of failure, but if you don't try, you will definitely ensure the failure. तो कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50% पॉसिबिलिटी होगी फेलियर की। अगर आप नहीं करोगे तो डेफिनेटली आप इंश्योर कर दोगे आपकी फेलियर को। कम टू द पॉइंट। सो today's session is pollination and types of pollination. What is pollination? It is not new session for you. Pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma. Transfer of pollen grains are male gametes. They are transferred from anther that is male reproductive structure to female reproductive structure, stigma. This process is called as a pollination. So there are two possibilities in case of pollination. Either that pollen grain must be transferred from anther of one flower to stigma of another flower. That means there is a possibility of getting changed flower either on same plant or on different plant. And second possibility, if there is a transfer of pollen grain on same plant same flower, वही flower के वही plant के anther to stigma transfer हो रहा है। तो according to this possibility there are two types of pollination as you can see here. First type is a self pollination. Self pollination is the transfer of pollen grain from anther to stigma of same flower of the same plant or another flower of the same plant. So according to these two conditions we have two subtypes of self pollination. First type is autogamy. auto का मतलब होता है, auto मतलब self और gamous का मतलब होता है marriage, मतलब fusion of gametes of same type is called as a autogamy. So same type इसका मतलब ऐसा होता है one of the male gamete and another is female gamete. So autogamy, transfer of pollen grain from anther to stigma. It is a type of self-pollination where anthers are transferred from, pollen grains are transferred from anther to stigma of same plant of same flower. That is called as a autogamy. If you will change the flower and will keep the plant same, you will get the definition of geitonogamy. Come to the point. As everything has a two perspective, every coin has a two sides. हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक गुड और एक बैड। वैसे ही सेल्फ पॉलिनेशन के भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। द फर्स्ट एडवांटेज, फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन एंड देन विल डिस्कस अबाउट द नेगेटिव पार्ट ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का जो सबसे पहला एडवांटेज है वो कौन सा है? you will definitely have some sort of theory questions in case of your examination, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो, whatever it may be, लेकिन इस पर एक थियोरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉलिनेशन के दो में से किसी एक टाइप पर। चलो कम टू द पॉइंट। सो विल ट्राई टू टेक इट इन यू कैन से डिफरेंशिएटेड मैनर, तो वो ज्यादा अच्छे से याद रहता है अकॉर्डिंग टू मी। So what is the first advantage of the self pollination? First and most important advantage, it is a sure method. Sure method. Why it is called as a sure method? See, ये जो pollination होता है ना, pollination, it is a trial and error type of possible, you can say process. Trial and error. Every fertilization process is a trial and error. That's why there is a possibility of failure. या हम बोल सकते हैं कि every fertilization is a kind of miracle because so many male gametes are, you can say, chasing to single female gamete, and at that time if one of the male gamete is got, you can say, fertilized with the female gamete, so there is a definitely possibility based condition is there. तो ये जो पॉलिनेशन है, ये पॉलिनेशन में श्योरिटी बहुत जरूरी होती है। श्योरिटी किस में होती है? सेल्फ पॉलिनेशन में। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे प्लांट भी सेम है और फ्लावर भी मोस्ट ऑफ द टाइम सेम है 50% पॉसिबिलिटी में। सेकेंड जो एडवांटेज है वो है देयर आर लीस्ट चांसेस ऑफ फेलियर। देयर आर लीस्ट चांसेस ऑफ फेलियर, तो मैं उसे यहीं पे जोड़ देता हूँ। लीस्ट चांसेस ऑफ फेलियर का मतलब होता है श्योरिटी ज्यादा होती है। जो थर्ड एडवांटेज है, नो एक्सटर्नल एजेंसीज आर रिक्वायर्ड। नो एक्सटर्नल एजेंसीज आर रिक्वायर्ड। एक्सटर्नल एजेंसीज की जरूरत क्यों नहीं होती है? व्हाट आर एक्सटर्नल एजेंसीज? यू विल सी, यू विल लर्न इट वेरी सुन इन द सेम लेक्चर। यही लेक्चर में आप इसके आगे जो टॉपिक है एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, वहां पर आप उसे एसेस कर सकते हो। लेकिन एजेंसीज का मतलब होता है आइदर विंड होती है, वाटर होता है, इंसेक्ट होते हैं, बर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई एजेंसी की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज दैट प्लांट itself is doing the same thing.
एक्सटर्नल एजेंसी पर डिपेंडेंसी जो होती है वो नहीं होती है सेल्फ पॉलिनेशन में। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो होता है इट इज इकोनॉमिक मेथड। यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज वेरी इकोनॉमिक मेथड। Why it is called as इकोनॉमिक मेथड? इकोनॉमिक का मतलब यहाँ पे क्या होता है, डोंट टेक इट एज अ सब्जेक्ट। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि कम से कम मॉडिफिकेशंस, कम से कम एफर्ट्स या कम से कम वेस्टेज ऑफ एनर्जी अगर होती है तो वो इकोनॉमिक मेथड बन जाती है। क्यों? फर्स्ट इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो कौन सी है, तो यहाँ पे कम से कम पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, सबसे जरूरी बात। दूसरी बात, कोई एक्सटर्नल एजेंसी को अट्रैक्ट नहीं करना है। अगर एक्सटर्नल एजेंसी को अट्रैक्ट करना है, इफ इट इज you can say living agent like a insect, bird, तो अकॉर्डिंगली उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए, फैसिनेट करने के लिए बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे वो मॉडिफिकेशंस की जरूरत नहीं होती है। एक तो पोलन ग्रेन कम वेस्टेज करने होते हैं, दूसरी बात अट्रैक्शन के लिए कोई स्पेशल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ मोर इकोनॉमिक मेथड एज कंपेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन। देन लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, एज आई टोल्ड यू हियर कि लीस्ट वेस्टेज, जितने भी पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं उसमें वेस्टेज कम होता है। तो वेस्टेज कम होगा तो कंपैरेटिवली पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने की जरूरत भी कम होगी। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस यू कैन से पॉलिनेशन इज जो जेनेटिक एबिलिटी होती है, जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है, ये यहाँ पर कम होती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पे देखो मैंने क्रॉस पॉलिनेशन में लिख दिया है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस, वेरिएशन, इवोल्यूशन। तो यही टॉपिक को यहाँ पे ले लेते हैं हम। तो जो भी जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है, जेनेटिक स्टेबिलिटी वो सेल्फ पॉलिनेशन में सबसे कम मिलती है, सबसे कम, लीस्ट पॉसिबल मिलती है। क्यों होता है? बिकॉज ये जो प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे अगर दो पेरेंट्स अलग अलग जीनोम लेकर आते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ रिकॉम्बिनेशंस बढ़ जाती है। रिकॉम्बिनेशंस अगर होते हैं तो उसकी वजह से वेरिएशंस बढ़ जाते हैं, वेरिएशन बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन होता है तो इंप्रूव होती है वैरायटी, डेवलपमेंट होता है वो वैरायटी में या वो काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे जेनेटिक स्टेबिलिटी सबसे कम होती है एज कम्पेयर टू क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि यहाँ पे एक ही प्लांट के जो दोनों गैमेट्स हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दे बिलोंग टू सेम प्लांट। तो एज दे बिलोंग्स टू सेम प्लांट देयर इज नो जेनेटिक वेरिएशन। तो जेनेटिक स्टेबिलिटी सबसे कम होती है, इम्प्रूव्ड वैरायटीज नहीं होती है। प्रोग्रेसिवली आप देखोगे तो इसमें इसकी जो जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है, जो इम्प्रूवनेस होती है, डेवलपमेंट होती है, वो कम होते 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 एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब वो प्लांट कोई जेनेटिक यू कैन से कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं कर सकता है। तो चलो ये थे एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। सबसे पहले तो था इट इज अ श्योर मेथड बिकॉज देयर आर लीस्ट चांसेस ऑफ फेलियर। दूसरा यू कैन से इट इज इकोनॉमिक मेथड बिकॉज कम से कम मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। देन लीस्ट वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन, और सबसे आखिर में देखा हमने कि जो जेनेटिक स्टेबिलिटी होती है, सी जेनेटिक स्टेबिलिटी, जेनेटिक वेरिएशन एंड रिकॉम्बिनेशन की बात करोगे तो सबसे कम है, लेकिन जेनेटिक स्टेबिलिटी की बात करोगे तो जेनेटिक स्टेबिलिटी ज्यादा है, जिसे हम प्योर लाइन्स बोलते हैं। प्योर लाइन्स क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो सेल प्लांट के थ्रू ही हो रहा है, तो जो भी प्योरनेस है वो कंटिन्यू होती है, लेकिन वेरिएशंस नहीं होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये थे एडवांटेजेस। कंसिक्वेंटली इसकी भी बात कर लेते कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। तो डिसएडवांटेजेस कौन कौन से? देखो, सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का वो कौन सा है? तो देयर आर नो चांसेस ऑफ फॉर्मिंग इम्प्रूव्ड वैरायटीज एज कंपेयर्ड टू हाइब्रिड्स, या जो भी क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं उनके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको देयर इज नो चांस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटीज। यहाँ पे आपको इम्प्रूव्ड वैरायटीज नहीं मिलेगी, इम्प्रूवमेंट नहीं होती है। इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब आप क्या लेते हो, इस पर बहुत जरूरी होता है कि इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या कुछ अलग नहीं मिलता है, बिकॉज रीजंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे जो भी पोलन ग्रेन से, जो भी गैमेट्स है, सेम प्लांट में बिलोंग करते हैं। दूसरा,
अगर चांसेस नहीं है इम्प्रूवमेंट के तो क्या होता है, अनडिजायरेबल कैरेक्टर कैन नाइदर बी एलिमिनेटेड नॉर डिजायरेबल कैरेक्टर कैन बी एडेड। तो जो है सो है, आपको उसी में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। यू कांट ऐड एज वेल एज यू कांट डिलीट। आप अगर अनवांटेड कैरेक्टर को डिलीट करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। इफ यू वांट टू ऐड सम डिजायरेबल कैरेक्टर यू कांट ऐड, तो आप एडिशन या डिलीशन नहीं कर सकते हो। ये भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है। वाइल गोइंग थ्रू दिस लेक्चर आप लिख सकते हो, वन बाय वन लिख सकते हो, या आपकी टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो, उसमें दिया है। विल ट्राई टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स। तो कंसेप्ट समझने के लिए हम डिस्कशन करते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट जो निगेटिव कैरेक्टर है वो कौन सा है, तो जो प्रोजेनी होती है, प्रोजेनी वो जेनेटिकली वीकर होती है, जेनेटिकली वीकर होती है। वाइटलिटी एंड वाइगर जो होता है ना वो कम होता है। क्यों वाइटलिटी और वाइगर कम होता है, जैसे कि हमने बहुत बार डिस्कशन किया है सेल्फ पॉलिनेशन में कि जो भी गैमेट्स है सेम प्लांट से बिलोंग करते हैं। गैमेट अगर सेम प्लांट से बिलोंग करते हैं तो जेनेटिक कंटेंट सेम होता है। जेनेटिक कंटेंट सेम होता है तो कॉम्बिनेशन की तो बात ही नहीं होती। अगर कॉम्बिनेशंस नहीं है तो वेरिएशंस नहीं है। अगर वेरिएशंस नहीं है तो इवोल्यूशन नहीं है। इवोल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे लेना है इम्प्रूवमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है। तो जो भी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें हैं तो वही कंटिन्यू होती है, उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं मिलते हैं। दैट्स व्हाई दे आर जेनेटिकली वीकर। अगर आप कंपैरिजन करोगे इनकी स्टेबिलिटी की या विगर की या वाइटलिटी की, तो ये सबसे वीक होती है। लेस वाइटलिटी एंड लेस यू कैन से वाइगर, ये इनका बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि इसमें इवोल्यूशन की पॉसिबिलिटी कम होती है। दैट्स व्हाई ये प्लांट्स खुद को अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशंस एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो चलो एज कंपेयर टू सेल्फ पॉलिनेशन बात कर लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के भी। मुझे लगता है अभी ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत है, बिकॉज यू जस्ट नीड टू कंपेयर द कंडीशन और अकॉर्डिंगली सेंटेंस में कुछ चेंजेस करने हैं। तो क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, नाउ यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द डेफिनेशन। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। सी प्लांट भी अलग है और फ्लावर भी अलग है। पिछली कंडीशन में प्लांट सेम होता था एट एनी कॉस्ट, यहाँ पे प्लांट ही अलग है। इट इज द बेसिक कंडीशन कि यहाँ पे प्लांट अलग है। सो अनदर फ्लावर ऑफ द अनदर प्लांट एंड क्रॉस पोलिनेशन में दो सब पॉसिबिलिटीज होती है, एक होती है जीनोगैमी, दूसरी होती है हाइब्रिडाइजेशन। तो जो डेफिनेशन मैंने अभी बताई वो डेफिनेशन में मैं इसे थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता हूँ कि अगर सेम स्पेसीज होती है, सेम स्पेसीज होती है, अगर मैं बात करता हूँ समझो हिबिस्कस की, रेड हिबिस्कस है, और अगर दूसरे रेड हिबिस्कस के प्लांट से पोलन ग्रेन टू दिस रेड हिबिस्कस प्लांट पर आते हैं और वहां पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है, तो मैं उसे बोलूंगा जीनोगैमी, क्योंकि स्पेसीज सेम है। पर अगर स्पेसीज चेंज हो जाती है, जीनस स्पेस चेंज हो जाती है, या दूसरी तरह से कोई चेंज हो जाता है ऑर्गेनिज्म में, तो वो डेफिनेशन बन जाता है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन का। तो एक बार जस्ट डिफाइन कर देते हैं जीनोगैमी मतलब क्या होता है। जस्ट वहां पे डेफिनेशन में ऐड कर दो कि सेम स्पेसीज, और अगर आप डेफिनेशन में लिख दोगे कि डिफरेंट स्पेसीज डिफरेंट जीनस या डिफरेंट सब स्पेसीज डिफरेंट सब जीनस, तो वहां पे बन जाता है डेफिनेशन हाइब्रिडाइजेशन का। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। तो एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है क्रॉस पॉलिनेशन के। यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक देना चाहता हूँ बच्चों। जो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस थे, सेल्फ पॉलिनेशन के जो भी एडवांटेजेस थे वो क्रॉस पॉलिनेशन के डिसएडवांटेजेस होते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन के सेल्फ पॉलिनेशन के जो भी डिसएडवांटेजेस थे वो क्रॉस पॉलिनेशन के एडवांटेजेस बन जाते हैं। तो आपको जस्ट क्रिस क्रॉस याद रखना है, आपके लिए बहुत इजी है। आई विल जस्ट रिकॉल इट फास्टर। तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है क्रॉस पॉलिनेशन का वो क्या होता है कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस एंड वेरिएशंस यहाँ पर होती है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की वजह से, क्यों रिकॉम्बिनेशन, री मतलब एक बार फिर, और कॉम्बिनेशन मतलब अलग अलग जब जीनोम एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है तो हम उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है क्योंकि दो स्पेसीज सेम हो, प्लांट अलग अलग है, तो रिकॉम्बिनेशन होता है। अगर रिकॉम्बिनेशन होता है तो वहां पे वेरिएशंस मिलते हैं, अगर वेरिएशंस मिलते हैं तो वहां पे पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिएशन भी बढ़ जाती है। मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। सेकंड एडवांटेजेस क्या होता है क्रॉस पॉलिनेशन का।
यहाँ पे आप डिजायरेबल कैरेक्टर को ऐड कर सकते हो, अनडिजायरेबल कैरेक्टर को इलिमिनेट कर सकते हो, जो कि यहाँ पे नहीं पॉसिबल था, तो यहाँ पे पॉसिबल है। थर्ड, आपके पास जितनी भी वैरायटीज होती है वो इम्प्रूव्ड होती है। इम्प्रूव्ड, अभी इम्प्रूव्ड वैरायटीज यहाँ पे हमने देखा था कि नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होता है। क्यों इम्प्रूवमेंट होता है? क्योंकि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है, वेरिएशंस है, और उसकी वजह से इवोल्यूशन और इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूव्ड है तो उसकी वजह से और एक एडवांटेजेस क्या होता है, ये जो प्रोजेनी होती है ना, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू प्रोड्यूस्ड हुई होती है जो प्रोजेनी, दे शोज हायर रेजिस्टेंस टू द डिसीज। ड्राउट कंडीशन को बेयर करने की जो एबिलिटी होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, डिसीज रेजिस्टेंस अच्छा होता है, हर तरह की विगर एंड वाइटिलिटी उसमें ज्यादा पैमाने पर आपको मिलती है। तो चलो डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। तो डेफिनेटली जो सेल्फ पॉलिनेशन के एडवांटेजेस होते होंगे वो यहाँ पे डिसएडवांटेजेस है। कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है? सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है कि दे आर डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल एजेंसी। तो एक्सटर्नल एजेंसी पर डिपेंडेंसी है। डिसएडवांटेज क्यों हुआ? हाँ है, डिसएडवांटेजेस है क्योंकि अगर वो एजेंसी कम पैमाने पर या कम कैसे कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है तो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर वो एजेंसी है तो ही पॉलिनेशन होगा, नहीं है तो पॉलिनेशन नहीं होगा। सेकेंड थिंग, इट इज नॉट श्योर मेथड। नॉट श्योर, यहाँ पे मैंने बताया कि इट इज श्योर मेथड, यहाँ पे श्योरिटी कम होती है। जस्ट इमेजिन करो कि कोई पॉलिनेशन हो रहा है विंड के थ्रू, और आज हवा कम है, विंड की कैसे फ्लो कम है, वेलोसिटी कम है, तो पॉलिनेशन उतनी इफेक्टिवली नहीं होगा जितना विंड की वेलोसिटी ज्यादा होते वक्त होता है। तो ये डेफिनेटली है कि नेचर और एजेंसीज पर आपको डिपेंड होना पड़ता है, तो श्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। इट इज नॉट इकोनॉमिकल मेथड, यहाँ पे लिखा था मैंने कि इकोनॉमिकल मेथड होता है, तो ये डेफिनेटली इकोनॉमिकल नहीं है। इकोनॉमिकल कौन से व्यू से नहीं है, ये समझ लीजिए कि इकोनॉमिकल मतलब यहाँ पे है कि अगर आपको ज्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ रहे हैं तो आपको बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है इन प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पोलन ग्रेन। दूसरी बात होती है कि अगर पोलन ग्रेन आते हैं तो आने के लिए एजेंसी लगती है। एजेंसी अगर बायोटिक होती है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, बर्ड्स या इंसेक्ट होते हैं, तो उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए आपको बहुत सारे यू कैन से एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, सॉरी मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। तो वो मॉडिफिकेशन करने में फ्रेग्रेंस बढ़ाना पड़ता है, कलर बढ़ाना पड़ता है, वॉट एवर इट में भी, जो भी कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं उस पर बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है प्लांट को। तो तीसरा और लास्ट वाला जो यू कैन से डिसएडवांटेज है वो कौन सा है? तो जेनेटिक प्योरिटी जो होती है ना, जेनेटिक प्योरिटी जो मैंने यहाँ पे बताया था, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलती है, तो यहाँ पे नहीं होती है। तो प्योर लाइन वैरायटीज क्रॉस पॉलिनेशन में आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि प्योरिटी का सवाल ही नहीं आता है। अगर दो अलग अलग वैरायटीज एक दूसरे के साथ मिलकर एक थर्ड वैरायटी फॉर्म करती है तो प्योर लाइंस आपको डेफिनेटली नहीं मिलती है। बट ये डिसएडवांटेज से ज्यादा अच्छा एडवांटेजेस तो आपको क्रॉस पॉलिनेशन में मिल चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इतनी कुछ एडजस्टमेंट वाली बात है। तो ये था सब यू कैन से डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसके बाद जो टॉपिक हमें आज कवर करना है इसी लेक्चर में वो है एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है और कौन कौन सी एजेंसीज होती है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो देखो, पॉलिनेशन की जो प्रोसेस है उसकी डेफिनेशन को आप समझ लोगे, उसके बेसिक को आप समझ लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन पर डिस्कशन करना क्यों जरूरी है। एज आई टोल्ड यू कि जो मेल गैमेट होते हैं एनिमल्स में, पर्टिकुलरली एनिमल्स में, वो होते हैं मोटाइल, तो उन्हें किसी एजेंसी की जरूरत नहीं होती है। दे कैन मूव एट देयर ओन, वो खुद मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वो खुद मोटिलिटी दिखाते हैं, तो उनको ट्रांसफर के लिए किसी एजेंसी की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे एजेंसी की जरूरत है, तो एजेंसी कौन सी ये भी पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स मूव टू एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन। एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन, तो एजेंसीज में दो पॉसिबिलिटी होती है। एक पॉसिबिलिटी होती है वो एजेंसी अगर लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो हम लिखते थे ओबायोटिक एंड बायोटिक, बायोटिक एंड ओबायोटिक। सो व्हाट डू यू मीन बाय ओबायोटिक? जितनी भी नॉन लिविंग एजेंसीज होती है,
means those factors, those agencies which transfer the pollen grain from anther to stigma, which are non living, जो living नहीं है, जिंदा नहीं है, वो आ जाती है अबायोटिक में। इसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज आती है बच्चों? एग्जांपल में दे सकता हूँ, विंड होती है, वाटर होता है, ये होती है एजेंसीज, अबायोटिक एजेंसीज। अगर बायोटिक में डिस्कशन करोगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, स्नेल्स होती है, बैट्स होती है, तो जितने भी लिविंग फैक्टर है वो आ जाते हैं बायोटिक में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अबायोटिक एजेंट्स के बारे में। अबायोटिक एजेंट्स मतलब नॉन लिविंग है, या आप बोल सकते हो उन्हें कि वो फिजिकल फैक्टर्स है। तो if there is a transfer of pollen grain from anther to stigma by some non-living factor, it is called as a abiotic pollination. तो abiotic agencies में हमें दो important you can say फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला है विंड और दूसरा है वाटर। तो अगर विंड होता है तो आप उसे बोलते हो एनेमोफिली। एनेमोफिली, व्हाट डू यू मीन बाय एनेमोफिली? एनेमोन, इसका मीनिंग होता है विंड। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको इतना बताऊंगा कि दे डिपेंड if transfer of pollen grain takes place with the agency of wind, then it is called as a एनेमोफिली। अगर आपका पॉलिनेशन का एजेंट नॉन लिविंग है और विंड है तो ये जो पॉलिनेशन है इसे हम बोलते हैं एनेमोफिली। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस, इट इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की एजेंसीज का सबसे पुराना वाला, सबसे प्रिमिटिव टाइप वाला जो ये होता है, टाइप होता है, वो होता है एनेमोफिली। अभी एनेमोफिलस प्लांट मतलब क्या, और एनेमोफिली में कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इसके बारे में बात करेंगे। तो एनेमोफिली एजेंसी है विंड। अभी प्लांट कौन से प्लांट को एनेमोफिलस प्लांट बोलोगे आप? यू कैन जस्ट मॉडिफाई द डेफिनेशन, बहुत कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है और कुछ ज्यादा टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। डेफिनेशन ऑफ एनेमोफिलस प्लांट, अगर किसी प्लांट में पॉलिनेशन की एजेंसी विंड है तो वो पॉलिनेशन है एनेमोफिलस और वो प्लांट बन जाता है एनेमोफिलस प्लांट। द प्लांट व्हिच शोज अ पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ एजेंसी ऑफ विंड इज कॉल्ड एज अ एनेमोफिलस प्लांट। तो एनेमोफिलस प्लांट आपको कैसे पहचानना है? व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस मेड बाय द एनेमोफिलस प्लांट इन ऑर्डर टू हैव, यू कैन से, सक्सेसफुल पॉलिनेशन। तो चलो डिस्कशन कर लेते हैं कौन कौन से मॉडिफिकेशंस होते हैं किसी भी एनिमोफिलस प्लांट में। सबसे पहला एनिमोफिलस जो मॉडिफिकेशन है वो कौन सा है बच्चों? तो जो फ्लावर्स होते हैं वो स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस होते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं एनिमोफिलस प्लांट के वो होते हैं स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस। स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिकस, स्मॉल का मतलब होता है वो छोटे छोटे होते हैं, इनकॉन्स्पिकस मतलब जो भी अट्रैक्शन करने के लिए जो भी फैक्टर जरूरी होते हैं, चाहे वो कलर हो, चाहे वो नेक्टर हो, चाहे वो फ्रेग्रेंस हो, तो वो सभी एब्सेंट होते हैं। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इनकॉन्स्पिकस, मतलब नॉन अट्रैक्टिव टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं। तो स्मॉल होते हैं और इनकॉन्स्पिकस होते हैं। क्यों स्मॉल और इनकॉन्स्पिकस होते हैं आप समझ सकते हो, किसी एजेंसी को या किसी एक्सटर्नल फैक्टर को इन्हें अट्रैक्ट नहीं करना है। दूसरी बात यूजुअली इनमें ब्राइट कलर, नेक्टर, फ्रेग्रेंस ये सभी एब्सेंट होता है। पेटल्स आर ग्रीन और हाईली रिड्यूस्ड। जो पेटल्स होती है, पेटल्स वो यूजुअली आप ग्रीन देख सकते हो। अभी आप ग्रीन कलर की जो पेटल्स होती है, इसमें ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा बोलूंगा कि दे आर नॉन कलर्ड। मतलब ग्रीन बहुत यूजुअल कलर है प्लांट में, तो ग्रीन से अदर जो कलर्स होते हैं ना, जो अट्रैक्शन के लिए यूज होते हैं, तो वो कलर यहाँ पे यूज करने की जरूरत नहीं होती है। और रिड्यूस्ड होती है पेटल्स, क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन नहीं करना है और कॉन्स्पिकसी नहीं दिखानी है। नेक्स्ट जो मॉडिफिकेशन होता है, दी फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वो यूजुअली यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है फ्लावर्स आर आइदर मेल और फीमेल। ये तो डेफिनेटली है, क्योंकि यूजुअली हम जो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं ना, एज एंजियोस्पर्म्स देख लीजिए कि हिबिस्कस होता है, तो 99% प्लांट होते हैं बाइसेक्सुअल, क्योंकि प्लांट में ही मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट भी होता है और फीमेल गैमेट प्रोड्यूसिंग पार्ट भी होता है। तो यूजुअली जो सेल्फ पॉलिनेटिंग पर्टिकुलरली एनिमोफिलस प्लांट है वो होते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल एंड फीमेल प्लांट्स आर डिफरेंट। देन जो
स्टैमेंस होते हैं, दे आर विथ लॉन्ग फिलामेंट, वर्सटाइल एंड एक्सपोज्ड एंथर। तो बात करते हैं किसके बारे में कि जो भी स्टैमेंस होते हैं वो स्टैमेंस होते हैं, स्टैमेन के जो फिलामेंट होते हैं वो लॉन्ग होते हैं इन ऑर्डर टू डिस्पर्स द पोलन ग्रेन इन हाई एयर। देन सेकंड इज जो वर्सटाइल होते हैं और एक्सपोज्ड एंथर होते हैं। एक्सपोज्ड एंथर का मतलब होता है दे आर नॉट कवर्ड बाय एनी यू कैन से एक्सटर्नल कवरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत इजीली एक्सपोज हो जाते हैं। देन पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर, एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। क्यों? क्योंकि आपको कैरी करने वाली जो एजेंसी होती है वो एजेंसी होती है विंड, और अगर विंड के साथ आपको बहना है तो आप ये अश्योरिटी नहीं दे सकते हो कि मिनिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर कर भी आपको श्योरिटी मिल सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। आप अगर पूछोगे कि बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है, तो इट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द एनेमोफिलस प्लांट की उससे ज्यादा क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। अगर ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस करने पड़ते हैं तो वेस्टेज भी ज्यादा है। देन these are जो पोलन ग्रेन होते हैं, these are small smooth walled pale yellow in color and light weight। तो जो पोलन ग्रेन्स है वो भी कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं। क्यों? हवा के साथ उड़ना है, कलर्ड नहीं है और स्मूथ होते हैं। स्मूथ पोलन ग्रेन होना ये सिर्फ एनेमोफिली में ही पाया जाता है। यूजुअली जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं उनके साथ जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, यूजुअली दोज पोलन ग्रेन्स हैव यू कैन से थोड़े रफ होते हैं इन ऑर्डर टू स्टिक टू दी इंसेक्ट या बर्ड की बॉडी पर चिपकना चाहिए, इसके लिए वो थोड़े से रफ हो जाते हैं। देन सबसे जरूरी और आखिर वाला जो उसका मॉडिफिकेशन वो बता देता हूँ कि इसकी जो स्टाइल होती है, मतलब जो फीमेल रिसेप्टाइल स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। इट बेयर्स लार्ज फिदरी और हेयरी स्टिग्मा इन ऑर्डर टू ट्रैप द पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए फीमेल पार्ट में या फीमेल फ्लावर में इंडिपेंडेंट होता है ना, अलग प्लांट में होता है, तो उसमें जो स्टाइल होता है ना, स्टाइल वो कैसा होता है, वो स्टाइल होता है यूजुअली फिदरी या हेयरी। क्यों होता है फिदरी या हेयरी? इन ऑर्डर टू ट्रैप द मोर एंड मोर नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? यूजुअली जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं ना, मेज होता है, व्हीट होता है, तो ये सभी जो प्लांट था, शुगर केन, ये सभी एग्जांपल्स थे कौन से प्लांट के बच्चों? एनेमोफिलस प्लांट। तो एनेमोफिलस प्लांट और एनेमोफिली और मॉडिफिकेशंस शोन बाय एनेमोफिलस प्लांट, इसके ऊपर हमने डिस्कशन किया। जो नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे हाइड्रोफिली की, और जो बायोटिक फैक्टर्स है उनके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।